man running on a horizontal road at 8 km per hour. Velocity of man is 8 km per hour. Find the rain is falling vertically. This is velocity of rain with respect to man. Rain with respect to man. तो अभी क्या करना है ना, मैन के वेलोसिटी को नेगेटिव करना है, फिर मैन का वेलोसिटी और रेन के वेलोसिटी में हम लोगों को रेन का वेलोसिटी ऐसे ड्रॉ करना होगा कि रेन का वेलोसिटी और नेगेटिव ऑफ मैन का वेलोसिटी मिला के ये डायगोनल बने। याद आ रहा है? ऐसा पढ़े आप लोग सब कोई? यस सर। यस सर। मान लो जैसे हम लोग के पास रेन का वेलोसिटी हम लोग मानते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। याद आया? तो velocity of rain with respect to man is velocity of rain minus velocity of man. velocity of rain हम लोगों का है a I cap plus b j cap minus 8 I cap. So it is a minus 8 I cap plus b j cap, and this is velocity of rain with respect to man. According to question, बोला गया है this velocity is vertical. Since velocity of rain with respect to man is vertical, अगर ये vertical होगा तो उसका x component 0 होगा। इसका मतलब a minus 8 is equals to 0, so a will be equals to 8. a मिल गया। क्वेश्चन का सेकंड केस, सेकंड केस में बोला गया कि जब वो मैन अपना वेलोसिटी 8 से बढ़ा के 12 कर देता है, जब वो मैन अपना वेलोसिटी 8 से बढ़ा के 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो क्या उसकी वजह से रेन का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा क्या? बोलो बोलो। कोई इफेक्ट नहीं। तो मैन के वेलोसिटी को हम लोग माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन किए, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो पैरेललोग्राम बनाना है। तो क्या हमको ये डायगोनल मिला, जो डायगोनल मिला दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सो इट मेक्स एन एंगल समथिंग व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। आप देखिएगा पहले दिन एकदम आपके कॉपी पे ये न्यूमेरिकल बना हुआ है 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। नाउ सी दैट क्या हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सेकंड केस में ऐसे लिख सकते हैं, a I cap plus b j cap velocity of rain minus 12 I cap man. So velocity of rain with respect to man is a minus 12 I cap और plus b j cap, a minus 12 I cap plus b j cap। अब जरा गौर करना कि जो 30 डिग्री एंगल है वही 30 डिग्री तो यहाँ भी है, तो जब आप ये tan 30 लेंगे ना तो परपेंडिकुलर, कहने का मतलब x कंपोनेंट बाय बेस y कंपोनेंट। सो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के जगह पे x कंपोनेंट और बेस के जगह पे y कंपोनेंट भी आ गया। tan 30 का वैल्यू बोलो 1/√3, a के जगह पे 8 माइनस 12 बाई बी, सॉल्व करके बी निकाल दो आंसर। समझ में आया? यस सर। नहीं, हम लोग लास्ट रिवर बोट प्रॉब्लम कर रहे थे ना, आपको याद है? जाते जाते आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, याद है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, आज क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा तुम लोग और बनाएगा। क्वेश्चन लिखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर करेंट, velocity of river current is 6 meter per second. Velocity of river current is 6 meter per second. First up, लिखो, a boat have velocity
a boat have velocity 10 meter per second with respect to river water. 10 meter per second with respect to river water. First stop. If width of river is 100 meter, if width of river is 100 meter, then find. If width of river is 100 meter, then find. If width of river is 100 meter, then find. फर्स्ट में लिखो एंगल एट विच boat should be headed, angle at which boat should be headed so that boat should be headed so that when it passes the river it does not have any drift. When it passes the river it does not have any drift. It does not have any drift. सेकेंड में लिखना टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर in above case. Time taken by boat to cross the river in above case. हो गया. थर्ड लिखो condition for which boat takes minimum time. Condition for which boat takes minimum time to cross the river. Condition for which boat takes minimum time to cross the river. Next है fourth. Find minimum time to cross the river. Find minimum time to cross the river. Next लिखो when boat crosses the river in minimum time. When boat crosses the river in minimum time, then find drift of boat. Then find drift of boat when it reaches opposite bank. Drift of boat when it reaches opposite bank. 5 questions, you have 5 minutes. Draw proper figure and solve this. 5 मिनट आपको दिया जाता है, सॉल्व कीजिए फटाफट. चलो बोलो फर्स्ट का आंसर बोलो. 3/5. sin theta equals to 3/5. ओके हाँ sin theta is equals to 3/5. सेकंड का आंसर बोलो. Total time is equal to 12.5. Total time is 12.5 seconds. Yes sir. वेरी गुड. उसके बाद बोलो थर्ड का आंसर. सर कंडीशन यही होगा कि cos थीटा 0 होना. cos थीटा 0 जीरो होना चाहिए. इसका मतलब जो बोट का वेलोसिटी है वो रिवर के करंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए. सही है. ठीक है. फोर्थ बोलो. मिनिमम टाइम 10 सेकंड्स. मिनिमम टाइम 10 सेकेंड्स. सही है ना सबका. ठीक है. और उस केस में ड्रिफ्ट कितना है भाई. फिफ्थ वाला का आंसर 60 मीटर. वेरी गुड. 60 मीटर. बहुत बढ़िया. सब सही हो गया लेकिन हम चाहते हैं आप लोग सबको ही बोले क्या सबसे बना.
ऐसा जिससे नहीं बना हो? देखो शर्मा के या ये सोच के कि दूसरे से बन गया मेरे से नहीं बना, अपना घटा कर लेगा। किसी से नहीं बना बोलो, बता देंगे, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देंगे। लास्ट वाला बताइए सर। लास्ट वाले में देखो हम लोग को क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करना है, तो पहले यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मान लो हम लोग के पास ये रिवर है 100 मीटर विड्थ। अब देख रिवर का करंट था राइट की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड था। अब जब ये बोट का हेड इधर रहेगा तो याद रखना कि जब जब वो पार करेगा तो वो इस रास्ते पे जाएगा, उसका हेड हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो जाएगा इधर। इज दिस क्लियर? ए से चलेगा बी पे ना पहुंच के पहुंचेगा सी पे, ए से चलेगा बी पे ना पहुंच के पहुंचेगा सी पे। तो देखो जैसे स्टूडेंट लोग हमको बताया कि फोर्थ वाले केस में जो टाइम आया था वो 10 सेकेंड था। तो अब जरा सोच के बताना, जिनको भी डाउट था आप जरूर बोलने का कोशिश कीजिए। कौन है जो रिवर को बोट को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है? कौन सा वेलोसिटी है जो उसको राइट ले जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड, सही है ना? तो अब सोचो कि 10 सेकेंड है और 6 मीटर पर सेकेंड, क्या ये 60 मीटर नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। बस यही था। कोई दिक्कत किसी को? किसी का भी कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम? चलो ठीक, एक और क्वेश्चन लिखो। हम फिगर बना देते हैं, क्वेश्चन लिखने में देर होता है। तुम फिगर देखो, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करना है। देखो ये हम लोग के पास रिवर, जिसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर है सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, और हमारे रिवर का विड्थ है 100 मीटर। ठीक है, अब देख यहां से एक बोट का हेड आप इधर रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री। आप लोग sin 37 cos 37 का वैल्यू जानते हैं ना? sin 37 कितना? 3/5, cos 37 4/5। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये 37 हम दे दिए, ए से चला है। When boat reaches opposite bank find shift in position of boat from B। चलो बनाओ। जब बोट अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो उसके पोजीशन में कितने का शिफ्ट रहेगा, तुमको ये बताना है। चलो बनाओ, चलो बनाते हैं। देखो बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक कंपोनेंट ऊपर, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का cos 37, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का sin 37। सही है। एट द सेम टाइम रिवर का करंट भी राइट की तरफ। हम तुम्हारे समझने के लिए इसको x एक्सिस और इसको y लिख देते हैं। जब आप y के डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे, कंसिडरिंग मोशन अलोंग y एक्सिस, तो आपको पता चलेगा कि कितना समय लगेगा रिवर को पार करने में। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय पार कराने वाला वेलोसिटी। पार कराने वाला वेलोसिटी कितना है बोलो? हाँ, बी बी आर का cos थीटा कंपोनेंट
बी बी आर का cos 37 डिग्री। सब कोई पूरा अटेंशन पे करे। अभी देखो वेलोसिटी कितना है 12, cos 37 कितना 4/5, ये 5 ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया 500 और नीचे हो गया 48। इतना सेकंड्स लगेगा पार होने। ठीक है, 10.4 सेकंड्स है। कितना 10.4 सेकंड। चलो 10.4 सेकंड्स लगेगा पार होने। अब आपको ये चेक करना था यहां कि x के डायरेक्शन में क्या है। देखो x के डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ v br sin 37 है, राइट की तरफ vr है। दोनों अलग अलग निकाल लो along x axis। v br sin 37, v br 12 है, sin 37 3/5 है, so it is 36/5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, वो कितना है भाई 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ बड़ा कौन है, वी बी आर साइन 37 की वी बी आर? बी आर, अरे बोलो यार। वी बी आर साइन 37 बड़ा है, ये तो 7.2 मीटर आ रहा ना। ठीक है, तो जरा सोचना ध्यान से कि जो वी बी आर साइन 37 डिग्री है ये बड़ा है आर से। तो जरा सोच के बताओ, ए से चलेगा तो बी पे पहुंचेगा या बी के लेफ्ट में सी पे पहुंचेगा या बी के राइट में डी पे पहुंचेगा? सोच के बोलो। अरे बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? हाँ बोलो। सी पे पहुंचेगा, सी पे। सी पे पहुंचेगा, वेरी गुड। लेकिन बाकी सबको किसी को दिक्कत हो रहा है तो प्लीज बोलिए। ये सब कंपटीशन लेवल में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए लेफ्ट की तरफ का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और राइट की तरफ में लेफ्ट वाला का वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब ये है सो both have velocity BBR sin 37 minus VR towards negative x-axis। BBR sin 37 minus VR towards negative x-axis। ठीक है, इधर की तरफ। Therefore B से C तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा BBR sin 37 minus VR into टाइम जो आप निकाले। तो ये हम लोग का आया 7.2, इसमें से 6 माइनस करो और टाइम जैसे तुम लोग बताया 10.4। सो इट इज 1.2 मल्टीप्लाइड विथ 10.4। सॉल्व कर लेना, इतना मीटर। बोलो बोलो, समझा? यस सर। बोलो जी, हो गया? बोलो जी, हो गया? यस सर। अच्छा, हम एक थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, फिर आपको आंसर देना। अच्छा, अगर ये रिवर का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होता, 6 मीटर पर सेकेंड के जगह पे 8 मीटर पर सेकेंड होता, बताओ जरा ए से चलता तो बी पे पहुंचता, सी पे पहुंचता या डी पे? डी पे सर। डी पे पहुंचता। क्या इस बार बिल्कुल सही, क्या इस बार उसका राइट हैंड साइड की तरफ वेलोसिटी होता, राइट हैंड साइड की तरफ? यस सर। यस सर। कितना होता? क्या हम लोग इस बार VR में से VBR sin 37 को माइनस करते ना, उल्टा करते ना? यस सर। ठीक है,
और फिर से काम वही होता कि VR 8 था, उसमें से 7.2 माइनस करते तो 0.8 होता, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो B से D मिलता। क्लियर है ना? Yes. तो चीज इस तरह से क्राफ्ट होता है, ठीक है, और आपको हर क्वेश्चन को समझना पड़ता है। क्लियर? ठीक। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब एक देखिए, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब स्कूल से ज्यादा आपके कंपटीशन के लिए ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। हम लोग अगले दिन से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल में बेसिक से पढ़ेंगे, फिर लास्ट में सब कंपटीशन वाला चीज पढ़ेंगे। अभी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगभग खत्म कर रहे हैं, तो हम आपको है ना उसमें जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक हम सब खत्म कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जनरल कॉन्सेप्ट फॉर different types of motion and path followed. Be careful, okay? थोड़ा ध्यान से। मान लो जैसे इस पाथ पे कोई एक बॉडी चल रहा है, किसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी इधर है और उसका एक्सेलरेशन इधर है, और ये एंगल है थीटा। वेलोसिटी उधर है, एक्सेलरेशन इधर है, और एंगल है बीच का थीटा। एकदम आराम से समझिएगा। और एक चीज थोड़ा हेल्प कीजिएगा, पूरा खत्म हो के लास्ट में बोल देना कि सर नहीं समझे, उससे अच्छा है जहां नहीं समझना वहीं पूछ लेना। क्या सबको समझ में हम क्या बोले? वेरी गुड, देखते चलो। अब देखो भाई, इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक वेलोसिटी के पैरेलल, क्या हम लोग उसको a cos थीटा लिखते हैं, और दूसरा उसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्या हम उसको a sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक है वेलोसिटी के पैरेलल और दूसरा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। एक है वेलोसिटी के पैरेलल और दूसरा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। नाउ थिंक, ये दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग काम करता है। जो आप ए का पैरेलल देख रहे हैं ना, उसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो आप ए का परपेंडिकुलर देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। A perpendicular is radial acceleration and A parallel is tangential acceleration। पता है आपको, हर एक्सेलरेशन जो यहाँ दोनों कंपोनेंट देख रहे हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, इन दोनों का अपना अपना काम है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, जो टेंजेंस, इसको कभी कभी ए पैरेलल ए टेंजेंशियल ऐसे लिखा है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, वो बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करता है, मैग्नीट्यूड बढ़ाता है, घटाता है। तो बॉडी जो किसी पाथ पे चलता है, अगर उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है या घटता है, जैसे आप एक साइकिल चला रहे हैं, आप उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप कहीं साइकिल को घुमा रहे हैं और उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो याद रखना कि जब भी आप स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूज्ड टू चेंज magnitude of velocity, used to change magnitude of velocity, ठीक है, और speed of body, और speed of body।
यूज्ड टू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ बॉडी। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हम लोग का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होता है dv by dt, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज dv by dt, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आओ इस पे भाई एक परपेंडिकुलर पे एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, उसको आप रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और देखो, जब आप कोई बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे मूव कराएं और जब आप किसी बॉडी को कर्व पे मूव कराएं, दोनों में अंतर होता है। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है ना, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसका डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। लेकिन स्ट्रेट लाइन को छोड़ के तुम कोई भी पाथ पे बॉडी को मूव करा लो, सर्कल में घुमा लो, इलिप्स में घुमा लो, पैराबोला में घुमा लो, कोई जनरल कर्व में घुमा लो, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के बॉडी को किसी भी कर्व में घुमाइएगा तो उसका डायरेक्शन जरूर बदलता है। तो याद रखना कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यूज्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यह वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है। हमेशा ध्यान रखना, इसको AR लिख सकते हैं आप, AC भी लिख सकते हैं। तो A परपेंडिकुलर, A रेडियल, इन सब का एक ही वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर बाई r is the velocity at that instant divided by radius, v स्क्वायर बाई r। तो आप अब दिमाग में रखिए कि कभी भी अगर मोशन ऐसा हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा उसका एक अलग रोल है, उसका एक अलग मीनिंग है। और अगर एक्सेलरेशन का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया तो उसका एक अलग रोल है, उसका एक अलग मीनिंग है। थोड़ा सा और अगर आप इसमें डीप जाएंगे ना तो हम आपको, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, हम उस चीज को एनालाइज करके आपको दिखाते हैं। मान लो पहला, अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, क्या बोलता है, क्या इस तरह के मोशन में कभी भी डायरेक्शन बदलेगा? अपने से सोच के बोलो, क्या इस तरह के मोशन में कभी भी डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो पहला लाइन, there is no change in direction of motion, only magnitude of velocity changes। so कौन सा पाथ फॉलो करे कोई बॉडी कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ना करे? बोलो कौन सा पाथ? स्ट्रेट पाथ सर। बिल्कुल सही। सो दिस इज मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन। तो कभी भी, आप तो ऑलरेडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म कर चुके हैं। आप देखिएगा जितना भी आप न्यूमेरिकल बनाते थे सब में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो सेम में होता था या अपोजिट में। ये कोई एंगल नहीं बनाता था, ये कोई एंगल नहीं बनाता था, याद है? अगला सुनो, अगला सुनो सेकंड। अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ एंगल बनाए और एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट, तो देख रहा है ना, एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट इस बार आ जाएगा,
एक कंपोनेंट पैरेलल होगा, टेंजेंशियल होगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, रेडियल होगा। तो इस बार याद रखना कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है एंड डायरेक्शन ऑफ बी आल्सो चेंजेस, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा। ओके, पता है इस बार इस केस में देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी के साथ एंगल बनाया, याद रखना then path followed by body is parabolic। जो बॉडी पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक होगा, और आप जो अगले दिन से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, याद रखना वो यही है। मोशन इज 2 डायमेंशनल and it is projectile, वो प्रोजेक्टाइल होगा। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ एंगल बना रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो याद रखना कि पाथ कैसा फॉलो होगा, पैराबोलिक मोशन होगा, 2 डायमेंशनल, और इसी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो नेक्स्ट स्टेज से आपका स्टार्ट होगा। थर्ड केस देखिए। हाँ बोलो। फिगर एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन, ये वाला? यस सर। मान लो जैसे हम लोगों के पास बॉडी का वेलोसिटी है और उसका एक्सेलरेशन उससे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा, और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो मेरे इस एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी के पैरेलल और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सही है ना। इस बार दोनों कंपोनेंट आ गया, पैरेलल वाला कंपोनेंट भी आ गया और परपेंडिकुलर वाला भी कंपोनेंट आ गया। तो पैरेलल कंपोनेंट होने की वजह से स्पीड में चेंज होगा, बोलो बोलो, सही है। यस। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने से डायरेक्शन में चेंज होगा। यस सर। यस सर। इस तरह का जब सिचुएशन बनता है जिसमें स्पीड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वैसा पैराबोलिक पाथ फॉलो होता है, मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, सही है। अब देख एक केस दे, मान लो ये वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पूरी तरह से इस पे परपेंडिकुलर है, 90 बना रहा है। जब एक्सेलरेशन खुद इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो बोलो क्या उसका स्पीड बढ़ेगा? नहीं। इस बार टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 है, रेडियल कंपोनेंट ही a है, तो बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। बॉडी shows सर्कुलर मोशन। बॉडी जो है इस केस में सर्कुलर मोशन शो करता है। क्या यहां तक किसी को डाउट? देख लो, क्या यहां तक किसी को डाउट? तो वन नंबर में मैग्नीट्यूड बस चेंज होगा वेलोसिटी का। फर्स्ट में ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं। आप देखिए ना, मान लीजिए जैसे हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका स्पीड घट रहा है ना, यस सर। और फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, तो केवल मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो रहा है। ओके सर यहाँ पे पैरेलल है एक्सेलरेशन। कहां पर? ये यस सर। हाँ, ये वाला पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल। इसको आप एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, इसको डिसलरेटेड मोशन कहते हैं। चलो नोट करो फटाफट। ये वाला, हाँ, मान ले जैसे ऐसा हुआ कि जो वेलोसिटी है उस पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल नहीं आएगा, सही है ना? तो टेंजेंशियल कंपोनेंट 0, केवल रेडियल कंपोनेंट बच गया। तो रेडियल कंपोनेंट की वजह से केवल डायरेक्शन बदलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इसके बारे में आप डिटेल पढ़िएगा, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़िएगा तो हम लोग डिटेल पढ़ेगा। देख, इसके बारे में हम लोग अगले दिन से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं, देख रहा है ना सब चीज, ये पढ़ाई हो चुका, ये अगले दिन स्टार्ट होगा और ये खत्म होगा तब ये स्टार्ट होगा, ठीक है। नोट करो फटाफट। ग्राफिकल एनालिसिस, हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जितना भी ग्राफ का क्वेश्चन उन सबको। तो ग्राफिकल एनालिसिस के लिए आपका ध्यान सबसे पहले दो टॉपिक पे जाना चाहिए। पहला है स्लोप, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। देखो भाई, एक्सटी ग्राफ आप जब बोलते हैं ना तो आप एक्चुअली बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इन सब ग्राफ को आप एक्सटी ग्राफ के कैटेगरी में रखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, समथिंग लाइक दैट। तो मान लो जैसे अगर तुम्हारे पास वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो आप कोई भी लाइन अगर इस पे ड्रॉ कीजिएगा तो क्या इसका स्लोप dx/dt होगा? और dx/dt का मतलब वेलोसिटी होता है, बोलो बोलो। तो आज से आप याद रखिएगा, आज से आप याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इनडायरेक्टली तुमको वेलोसिटी बताता है। बोले सर इसका मतलब बताता है, इसका मतलब सुनना, अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव, अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब जैसा स्लोप वैरी करेगा वेलोसिटी भी वैसे ही वैरी करेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तुम ही सोचो, अगर आप एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेते हैं तो क्या इसका स्लोप जब आप लिखिएगा तो आप dv/dt लिखिएगा, और dv/dt बोलो तो क्या एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट, वेरी गुड। तो आज से आप याद रखेंगे कि जब कभी भी आप स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ देखेंगे, इनडायरेक्टली आप एक्सेलरेशन देख रहे होंगे, इनडायरेक्टली आप एक्सेलरेशन देख रहे होंगे। अगर एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना है, किस साइन का है, तो आपको बीटी ग्राफ का स्लोप देखना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन चाहिए कितना है, क्या है, तो याद रखना आपको है ना एक्सटी ग्राफ का स्लोप देखना होगा। तो स्लोप का ये दो पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखें। दूसरा के बाद थर्ड पॉइंट है एरिया, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। मान लो जैसे तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ग्राफ कुछ ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ। सपोज ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया मान लो, ये एरिया मान लो P है और ये एरिया मान लो Q है। ये एरिया निकाल लीजिएगा ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से और Q का एरिया निकाले ट्रायंगल के फॉर्मूला से। अब सुनना दो चीज, अगर आप टोटल एरिया अंडर बीटी ग्राफ निकालें, अगर टोटल एरिया अंडर बीटी ग्राफ निकाले, अगर बीटी ग्राफ के अंदर का टोटल एरिया निकाले, मतलब क्या कि ए बी सी डी में डी ई एफ को जोड़ दिए, तो याद रखना ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है, समझे।
डिस्टेंस। Yes, sir. लेकिन अगर आप नेट एरिया फाइंड किए, नेट एरिया अंडर बीटी ग्राफ, मतलब ए बी सी डी वाले में से डी ई एफ वाला जो पॉजिटिव था नेगेटिव को हटा दिए, कहने का मतलब पी में से क्यू को माइनस कर दिए, तो याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देखो चलो हम कुछ मैग्नीट्यूड पे हो, मान लो ये 10 है और ये सपोज कर लो 4 है, तो बोलो डिस्टेंस कितना 14. और डिस्प्लेसमेंट कितना 6. 6। बस यही पढ़ा। ओके, अगला देखो, अगला मान लो हम लोग फोर्थ वाला पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए वो है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, area under acceleration, and that will be equals to area under acceleration time graph will be equals to change in velocity del v, final velocity minus initial। कभी भी अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वैल्यू है तो उसके अंदर का जो आप एरिया निकालेंगे वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और टाइम है सेकंड में, और ग्राफ ऐसा है, यहां भी 10 है और ये भी 10 को टच कर रहा, ऐसा तुमसे बोला गया इफ initial velocity is 3 meter per second, then find final velocity at t equals to 10 second, then find final velocity at t equals to 10 second। ठीक है, चलो जी उधर जगह नहीं, हम यहां बना रहे हैं। तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो अंदर का एरिया निकालते, और जो एरिया आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आएगा। तो देखो तो एरिया अंडर ए और टी लिखें तो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ, दिस इज 50 चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 50, तो फाइनल आपको निकालना, इनिशियल 3 दिया हुआ है, बोलो क्या फाइनल वेलोसिटी 53 मीटर पर सेकंड हुआ? Yes, sir. तो ये आपका फंडामेंटल चीज है, ये 4 पॉइंट भूलना नहीं। अगर हम लोग एक्सटी ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो वेलोसिटी दिखेगा, अगर वीटी ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो एक्सेलरेशन दिखेगा, अगर वीटी के अंदर का एरिया निकालेंगे तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, और अगर एटी के अंदर का एरिया निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी। नोट करो फटाफट, देखो ग्राफ फॉर मोशन in which velocity is constant, acceleration is 0। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हम कुछ पूछ रहे हैं, बताते जाए। बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ये कांस्टेंट है, क्या सही है? Yes, sir. कोई हमको ये बताएगा कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ग्राफ कैसा, कोई स्ट्रेट लाइन या कर्व? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना कि एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सटी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसको समझते जाना, ठीक है? हम कुछ छोटा छोटा फिगर्स बनाते हैं।
सबसे पहला ये तुम्हारा, रुक जाओ, हम सीक्वेंस में एक ही साथ बना देते हैं, वेलोसिटी टाइम भी आ जाएगा। क्या हुआ, क्या हो गया, सोने का टाइम हो गया? एक्सटी ग्राफ ऐसा, एक्सटी ग्राफ ऐसा, एक्सटी ग्राफ ऐसा, ठीक है। देखो ये एक्सटी ग्राफ, इसका स्लोप पे आप ध्यान दीजिए, बताइए स्लोप कैसा है? तो स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, इसका मतलब वेलोसिटी यहां पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, सही है? Yes, sir. और इसमें बिकॉज आप देखिएगा तो यहां ये ओरिजिन को टच कर रहा है, तो x नॉट मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम पे 0 था, ओरिजिन पे था बॉडी। जब आप सेकेंड फिगर में आएंगे ना, तो यहां पे स्लोप पे फिर से ध्यान दीजिए, तो आपको दिखेगा कि स्लोप यहां भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट। लेकिन यहां पे रिमार्क ये है कि आप जरा इस पॉइंट को देखो, क्या x नॉट जो है वो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे क्या वो 0 है? नहीं, वो x नॉट है, सही है ना? Yes, sir. मतलब बॉडी t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ओरिजिन पे नहीं खड़ा है, इसमें ओरिजिन पे खड़ा है, इसमें ओरिजिन से कुछ दूर आगे खड़ा है। क्या समझ रहे हैं आप? Yes, yes, sir. इस केस में देखना, यहां बताओ स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव? निगेटिव है और कांस्टेंट है, तो याद रखना वेलोसिटी निगेटिव है और कांस्टेंट है। और बताओ क्या x t इक्वल्स टू 0 पे 0 है? नहीं, x नॉट है, x नॉट। हम आपको सबका एक एक फिगर बनाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए x इक्वल्स टू 0 है, यहीं पे बॉडी ऐसे पार हुआ t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पॉजिटिव की तरफ। यहां देखो, देख भाई ओरिजिन ये है, लेकिन बॉडी x इक्वल्स टू x नॉट पे था t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, और यहां से पॉजिटिव की तरफ गया, ये वेलोसिटी है उसका। और थर्ड देखना, उसमें ये है x इक्वल्स टू x नॉट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, लेकिन बॉडी जा इधर रहा। बोलो, समझा? वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तीनों में अंतर समझ में आ रहा? Yes, sir. अगर आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये भी देखो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो याद रखना पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहां देखो वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ओके, दिस इज योर एक्सटी ग्राफ। क्या किसी को डाउट, कोई ग्राफ समझने में यहां? चलो ठीक है, इतना नोट करो, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो जी, बोलो। सर वो सबसे थर्ड वाले को बताइए ना। ये वाला ना? वो सर उसके नीचे वाला। ये वाला? यस सर। अच्छा, मान लीजिए सपोज ये ओरिजिन है। ओके, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये ओरिजिन है और हम पहले से यहाँ खड़े। अब यहां से अगर हम आगे जाते हैं, तो वो ये केस है। ओके,
लेकिन यहां से अगर हम निगेटिव की तरफ चल देते हैं तो वो आपका थर्ड केस है। ओके सर। और देख लो किसी को कोई डाउट? तो फर्स्ट के नीचे वाला। ये वाला यस सर। मान लो ये ओरिजिन है ना, हम लोग बात किए थे ना, यहाँ ओरिजिन है, यस सर। यहीं से हम पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर दे तो यही है ग्राफ। जीरो टाइम तो ओरिजिन पे थे, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ओके सर। और कुछ किसी का?